स्क्रीन विजिबल है? यस सर। So last lectures we do transformations on calendar team and customer team, right? Yes, sir. Okay, so let me fetch another tables to see the more options in Power Query. Select new source, text CSV. And this time I select this product category table. This product category table contains only 4 rows. Product category key and category name, those are the columns. Only 4 rows are there in this particular table. So no transformations required. This is the dimension table. I simply load this table and rename this as a product category. This is my dimension table, so I'll just make these extensions again for the new table. Same for the subcategory also. This is also a dimension table. Contain product subcategory key, subcategory name, and the product category key, which shows we have multiple product category, and under each category we have multiple subcategories. Right? I'll just load this table and also rename this as a product subcategories dim. Again, I'll go to the new source, text CSV. This time I load this product tables. These product tables, I wanted to do some transformations. Simply load this. Let's start the transformations. Okay, the first transformations I wanted to do is this product size table. This product size tables contains some numbers also and some words also, L, M, XL, something like that. So those are the different data types for this particular column. So we won't require these columns in the analysis. I want to remove these columns. So columns को remove करने के लिए मेरे पास दो options है. एक ऑप्शन से मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके कॉलम्स को रिमूव कर सकता हूँ, रिमूव दिस कॉलम. दूसरा ऑप्शन से रिमूव अदर कॉलम्स. सेम ऑप्शंस मुझे यहाँ पे मिलेंगे ऊपर, रिमूव कॉलम्स एंड रिमूव अदर कॉलम्स. इफ ये मेरा प्रोडक्ट साइज का सिलेक्टेड है एंड प्रोडक्ट साइज का कॉलम मेरा सेलेक्टेड है, दिस टाइम अगर मैंने इसको रिमूव कॉलम कर दिया तो ये एक कॉलम रिमूव हो जाएगा. अगर रिमूव अदर कॉलम्स किया तो प्रोडक्ट साइज का कॉलम बचेगा, बाकी के सारे रिमूव हो जाएंगे. मुझे ये पर्टिकुलर कॉलम रिमूव करना है इसलिए मैंने इसको सेलेक्ट किया एंड आई सेलेक्ट रिमूव कॉलम्स. वो कॉलम्स निकल गया और यहाँ पे अप्लाइड स्टेप्स में वो स्टेप कैप्चर हुआ रिमूव कॉलम्स का. ठीक है. नेक्स्ट transformations I wanted to do is this particular column, product style column, having 0 MUW. So 0 is a text. We can replace this 0 with some text value. Let's say ENAN. 0 का मतलब यहाँ पे not available हम consider करेंगे. अगर मुझे किसी particular values को replace करना है, so we have options called replace values. replace values का options मुझे यहाँ पे transform में मिलेगा या home में मिलेगा. So we have this replace values. Any column. Sorry. Sir, any column section में replace करें. Any column. Yeah, this one. Replace values. So this replace values, we have two options, replace values and replace errors. So I'll select replace values. मुझे पूछेगा कि क्या replace करना है. So I'll say replace 0, replace with NA. I want to replace 0 with NA. Simply say OK. So जहाँ जहाँ पे 0 होगा वो 0 replace हो जाएगा NA से. Right? Next transformations I wanted to do on these two columns, product cost and product price. So यहाँ पे डेसिमल नंबर्स का जो डेसिमल्स है वो डेसिमल्स कहीं जगह पे 2 पे दिखा रहा है, कहीं पे 4 है. मुझे इसको एक स्टैंडर्ड
2 डेसिमल प्लेसेस पे इनको करना है. So which options we can use? Home. We have this rounding options over here. In the rounding options, we have 3 options: round up, round down, and round. I think during the customer dim, we also did this, right? For the each column. So we never calculated the age for this. Fine, it is fine. ठीक है. So if some decimal numbers are there, so उसको मैं कैसे कर सकता हूँ? मेरे पास यहाँ पे राउंडिंग में ऑप्शन है राउंड अप, राउंड डाउन एंड राउंड. जैसे मैं दोनों कॉलम्स को, इस पर्टिकुलर कॉलम्स को मैंने सेलेक्ट किया, मैं ऑप्शंस शो कर रहा हूँ आपको. जैसे मैं नया कॉलम एक ले रहा हूँ ऐड कॉलम के सेक्शंस में, एंड इन दिस ऐड कॉलम्स आई से राउंडिंग अप. तो देखो 13.0863 को उसने क्या लिया है, 14 लिया है, राइट. एक राउंड अप कर दिया उसने, करेक्ट. एंड इफ आई डू राउंड डाउन तो क्या होगा? Let's say again I select product cost and this time I select round down. तो सी राउंड डाउन को वो 13 पॉइंट के आगे का अगर कुछ रहेगा तो वो 14 कर रहा है राउंड अप में, राउंड डाउन लिया मैंने तो 13 ले रहा है. ठीक है. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन राउंड अप एंड राउंड डाउन. एंड थर्ड ऑप्शन से राउंड. राउंड में क्या करेगा, एक डेसिमल प्लेसेस जितने मुझे वहां पे रखने हैं वो पर्टिकुलर डेसिमल प्लेसेस को वो लेगा. लेट्स से प्रोडक्ट कॉस्ट है, मैंने यहाँ पे राउंड किया एंड मैंने 2 डेसिमल प्लेसेस दी कि मुझे वैल्यू जो है वो 2 डेसिमल प्लेसेस तक ही चाहिए. तो आउटपुट में मुझे कुछ समथिंग ऐसा मिलेगा 13.09. 2 डेसिमल प्लेसेस तक वो वैल्यूज को दे देगा राउंड करके. ठीक है. सो बेस्ड ऑन अवर रिक्वायरमेंट्स वी कैन यूज दोज ऑप्शंस राउंड अप, राउंड डाउन एंड राउंड. मुझे अभी नए कॉलम्स की ज़रूरत नहीं है. आई कैन डू ट्रांसफॉर्मेशंस ऑन दिस पर्टिकुलर कॉलम इटसेल्फ. सो मैं दोनों कॉलम्स को सेलेक्ट कर रहा हूँ एंड इंस्टेड ऑफ ऐड कॉलम आई विल गो टू दिस ट्रांसफॉर्म एंड राउंड ऑप्शंस को मैं यूज कर रहा हूँ. मुझे 2 डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यू चाहिए. सो आई सिंपली सेलेक्ट 2 एंड डू द ट्रांसफॉर्मेशंस. आई डोंट वांट दिस राउंडिंग एंड ऑल दिस. तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ. Fine. Okay. So this is ये understand हुआ round options. Yes, sir. Okay. So next transformations I wanted to do is, let's say this my product SKU का जो एक कॉलम है, इसके अंदर से मुझे एक्सट्रैक्ट करना है HL -U509. ये जो फर्स्ट है ना, इतना ये मुझे चाहिए. This is my value and okay, ये मेरा वैल्यू है और मुझे चाहिए क्या, मुझे ये चाहिए बस इसके अंदर से इतना. ठीक है. आउटपुट समझ में आया क्या चाहिए हमें, ये ट्रांसफॉर्मेशंस करना है हमें. इसमें से बस ये फर्स्ट वाला चाहिए मुझे, ये माइनस ये जो आईफन आर है वो नहीं चाहिए मुझे. ऐसा मुझे हर एक रो के लिए चाहिए. अगर मैं इस रो की बात करूँ तो यहाँ पे HL -U509 वो ऑलरेडी है तो वो मुझे चाहिए. लेकिन मैं थर्ड रो की बात करूँ तो मुझे बस इसमें से SO -B909 चाहिए. आईफन एम मुझे नहीं चाहिए. सो उसको कैसे कर सकते हैं हम? Used to replace. हमारे पास ऑप्शन है राइट. ऐड कॉलम्स के सेक्शन में लेट्स से मैं इसी कॉलम्स के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशंस करना चाहता हूँ. सो आई विल गो टू द ट्रांसफॉर्म ऑप्शंस. वी हैव दिस ऑप्शंस एक्सट्रैक्ट ओवर हियर राइट. हमने ये ऑप्शंस यूज किया है ना, टेक्स्ट बिफोर डिलिमिनेटर एंड टेक्स्ट आफ्टर डिलिमिनेटर राइट. In the customer table when we do transformations on the user Yes, sir. we already use those options के text before delimiter and text after delimiter. So मैं text before delimiter यूज कर सकता हूँ यहाँ पे. लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि delimiter मेरे पास 2 है यहाँ पे, सेम delimiter है आईफन. So simply if I do this कि मैंने यहाँ पे एक delimiter दे दिया
कि मुझे इस डेलिमिनेटर के पहले वाला चाहिए, तो वो बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, कंसिडर फर्स्ट वाला डेलिमिनेटर कंसिडर करेगा और उतना ही मुझे एक्सट्रैक्ट करके देगा. बट व्हाट वी वांट इज, वी वांट फर्स्ट डेलिमिनेटर टू बी स्किप एंड सेकंड डेलिमिनेटर के पहले वाला मुझे चाहिए इंफॉर्मेशन. सो एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट बिफोर डेलिमिनेटर की स्टेप को मैं अगेन रिनेम कर रहा हूँ. एडवांस ऑप्शंस में जा रहा हूँ मैं. दिस इज माय एडवांस ऑप्शंस. यहाँ पे नंबर ऑफ डेलिमिनेटर टू स्किप एक ऑप्शन आ रहा है. सो यहाँ पे मैं करूँगा कि दिस पर्टिकुलर डेलिमिनेटर जो मैंने दिया है वो स्किप करो फर्स्ट वाला एंड सेकेंड वाला डेलिमिनेटर के पहले वाला मुझे एक्सट्रैक्ट करके दे दो. सो इफ आई डू ओके, सी जो रिजल्ट मुझे चाहिए था रिक्वायर्ड HLU509, वो पर्टिकुलर रिजल्ट यहाँ पे मुझे मिल रहा है. ठीक है, अंडरस्टैंड हो रहा है. एक टेक्स्ट बिफोर डिलिमिनेटर में जैसा ऑप्शन से एडवांस में, वैसा ऑप्शन टेक्स्ट आफ्टर डिलिमिनेटर में भी है. सो रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उसको यूज कर सकते हैं कि कितने डिलिमिनेटर हमें स्किप करने हैं. राइट, ये क्लियर है. सर एक बार फिर रिपीट कीजिए. Okay, so let's say this is my original column product SKU. Let me add a new column. मैं ट्रांसफॉर्म की वजह से चाहिए नया एक नया कॉलम क्रिएट करते हैं. नए कॉलम में मुझे क्या चाहिए, दिस इज माय वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू, और दिस इज माय रिक्वायर्ड, मुझे ये चाहिए. लेकिन इस पर्टिकुलर सेल में क्या है, दो डेलिमिनेटर है, दो आइफन से सेम डेलिमिनेटर दो है. तो अगर मुझे एक्सट्रैक्ट करना रहेगा, इफ आई यूज टेक्स्ट बिफोर डेलिमिनेटर ऑप्शंस, तो मुझे वहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कि पहले वाला डेलिमिनेटर जो है उसको स्किप करना है, सेकंड वाले डेलिमिनेटर के जो पोर्शन रहेगा आगे वाला उसको मुझे यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करके दे दो. बट ये ऑप्शंस कहाँ पे मिलेगा मुझे स्किप करने का, सेम ऑप्शन एक्सट्रैक्ट का जो मेरा ऑप्शन है, एक्सट्रैक्ट में टेक्स्ट बिफोर डेलिमिनेटर में, व्हेन आई गो टू द एडवांस ऑप्शंस, वो मुझे स्किप करने का ऑप्शन देगा कि डेलिमिनेटर, दिस डेलिमिनेटर, इस डेलिमिनेटर के पहले वाला मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए, बट कितने स्किप करने हैं, एक डेलिमिनेटर स्किप करना है मुझे, फर्स्ट डेलिमिनेटर. इफ आई से ओके, तो नया कॉलम बनेगा जो मुझे रिक्वायर्ड आउटपुट देगा. इसको मैं लेट्स से रीनेम कर रहा हूँ SKU टाइप. अभी समझ में आया. Sir, I have a doubt here. Yes, sir. It's बोलो. if we put one over there, if you're asking to remove first delimiter after HL, that would be the first, right? HL hyphen, then U5509. Second one is second hyphen is before R, right? So when we put first number over there, so ideally it should remove after HL, right? Or why is it removing the before R? No, functions we use is the text before delimiter. No? Okay. So that is the reason it is removing the for first, like before, like after HL, is it? Yeah, yeah. So if you see, the same delimiter is over here. Two delimiters are the same. This hyphen and this hyphen. So what I'm saying is use text before delimiter options. Delimiter I'm passing this hyphen delimiter, and I'm saying in advanced options key skip first delimiter and consider second one, and give me the whatever the present first to this delimiter. So HL hyphen U509, this is the value present in this delimiter before this delimiter. So it extract those values and give me this result. सो सिंपली टेक्स्ट बिफोर डेलिमिनेटर ऑप्शंस क्या करता है कि आइफन्स के जो डेलिमिनेटर आप वहां पे पास करते हो, उस आइफन्स का वो वैल्यू आपको देता है बिफोर वाला. बस मैं यहाँ पे एक एडवांस ऑप्शन में उसको बोल रहा हूँ कि फर्स्ट वाला डेलिमिनेटर स्किप करो और सेकंड वाला कंसिडर करो जब एक्सट्रैक्ट करोगे तब. आणि सर तो तिथे सेकंड वाला जर कन्सिडर केला असता तर तिथं मग ते आर राहिला असता ना, HLU असं कंट्रोल झालं असतं. नो, बट I'm using text before delimiter, not after. Okay, got it. We have two options ना, text before delimiter and text after delimiter. if you use text before delimiter, तो जो delimiter पास करते हैं उसके पहले वाला वो information देता है ना, like this customer name, when we extract username and domain from this email address, this is my email address. तो text before delimiter ने क्या किया, @ जो मैंने delimiter दिया था उसके पहले वाला information मुझे यहाँ पे दिया था ना, John 24. Yes, sir. इस केस में क्या था कि यहाँ पे डेलिमिनेटर एक ही था, यहाँ पे एक डेलिमिनेटर @ था, दूसरा डेलिमिनेटर आइफन है, तीसरा डेलिमिनेटर डॉट है, तो डेलिमिनेटर अलग अलग है.
सो सेग्रीगेशंस के लिए या एक्सट्रैक्शन के लिए मेरे लिए ऑप्शन ईजी है कि मैं कोई भी एक डिलिमिनेटर दे सकता हूँ जिसके पहले वाला मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए। बट इस सिनारियो में क्या है कि सेम डिलिमिनेटर यूज किया है मल्टीपल टाइम्स, तो मैं अगर पर्टिकुलर वैल्यू मुझे एक्सट्रैक्ट कर चाहिए तो मैं टेक्स्ट बिफोर डिलिमिनेटर यूज करूंगा। जैसे मुझे HLU5099 चाहिए, जो ये सेकंड वाला डिलिमिनेटर है उसके पहले वाली वैल्यू है। यहाँ पे टेक्स्ट बिफोर डिलिमिनेटर में मैं बस एडवांस ऑप्शन में बोल रहा हूँ कि नंबर ऑफ डिलिमिनेटर टू स्किप इज 1। फर्स्ट जो डिलिमिनेटर है उसको स्किप करो, सेकंड डिलिमिनेटर के पहले वाला जो रहेगा एक्सट्रैक्ट करके मुझे दे दो। सो दैट्स व्हाट इट इज डूइंग। HL-U509 ये जो आउटपुट है ये मुझे एक्सट्रैक्ट करके दे रहा है। Sir, can you please put also second option also after delimiter? Text after delimiter, but Yes. text after delimiters you don't get this options HLU509। लेट्स से कि मुझे लेट्स से ऐसे चाहिए था कि लेट्स से मुझे U509-R ये आउटपुट चाहिए। सो हाउ कैन वी अचीव दिस? अभी जैसे मान लो कि ये वैल्यू है मेरी ना, हमने अभी ये एक्सट्रैक्ट किया था इसमें से, अगर मुझे इतना ही एक्सट्रैक्ट करना है, इतना ही एक्सट्रैक्ट करना है तो कैसे करेंगे? हम टेक्स्ट आफ्टर डिलिमिनेटर यूज करेंगे, राइट? मैं अगेन इस Yes. कॉलम को सेलेक्ट किया, एक्सट्रैक्ट ऑप्शन में गया, टेक्स्ट आफ्टर डिलिमिनेटर, लेट्स से डिलिमिनेटर मैंने यहाँ पे पास किया। अभी यहाँ पे मुझे एडवांस ऑप्शन यूज करने की जरूरत है क्या? मुझे कोई डिलिमिनेटर स्किप नहीं करना है, मुझे सेम फर्स्ट डिलिमिनेटर के बाद वाला ही चाहिए ना। HL बस मुझे निकालना है या SO निकालना है। सो एडवांस ऑप्शंस में यूज ही नहीं करूंगा इस टाइम पे, तो मुझे वो निकाल के दे देगा। अच्छा मैंने इसमें किया क्या? सी दिस वन, एक्सट्रैक्टेड U509R। यस सुनीता बोलिए। सर वहाँ पे 2 डेलीमीटर है तो वो बाय डिफॉल्ट फर्स्ट वाला लेगा क्या? हाँ, जैसे 2 हाइफन है ना, तो आफ्टर डेलीमीटर हमने वो एडवांस ऑप्शन यूज नहीं किया था। हाँ तो बाय डिफॉल्ट फर्स्ट वाला डिलिमिनेटर वो लेगा ना। अभी देखो फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे भी जो मैंने फर्स्ट वाला इंसर्टेड टेक्स्ट बिफोर डिलिमिनेटर के लिए जो क्रिएट किया ना, यहाँ पे अगर मैंने एडवांस ऑप्शन में ये दिया नहीं होता, इफ आई डू दिस, तो ये आउटपुट क्या देता मुझे? टेक्स्ट बिफोर डिलिमिनेटर है ना, तो फर्स्ट वाला डिलिमिनेटर वो डिफॉल्ट कंसिडर करता और आउटपुट में मुझे बस HL देता, HL SO ऐसे आउटपुट देता, लाइक दिस। बट मैंने यहाँ पे स्पेशली मेंशन किया कि फर्स्ट जो डिलिमिनेटर है उसको स्किप करो एंड सेकंड जो रहेगा मुझे देना। दैट्स व्हाई इट गिविंग मी HL-U509, फर्स्ट डिलिमिनेटर को स्किप कर रहा। समझे? यस सर। ठीक है, तो दिस इज द ऑप्शंस यूज फॉर द text before delimiter and after delimiter with some advanced options also. One more additional thing is over there. You see this product name column, यहाँ पे एक सेल में ये जो वैल्यू यहाँ पे मेंशन है कि स्पोर्ट 100 हेलमेट कॉमा रेड, तो कुछ इंफॉर्मेशंस यहाँ पे मल्टीपल इंफॉर्मेशंस कॉमा सेपरेट करके यहाँ पे स्टोर की हुई है। माइट बी इट इज अ कलर, माइट बी इट इज अ साइज, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन, मतलब मल्टीपल इंफॉर्मेशन एक सेल में यहाँ पे स्टोर की हुई है। मैं ऐसे बोलूँगा कि यहाँ पे एक इंफॉर्मेशंस मल्टीपल इंफॉर्मेशंस एक ही सेल में विद कॉमा सेपरेटेड स्टोर की हुई है। जैसे कि दिस प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आल्सो यूनिवर्सल फिट है, वेल वेंटेड है, लाइट वेट है, स्नैप ऑन वाइजर है, ऐसी मल्टीपल इंफॉर्मेशंस एक सेल में यहाँ पे स्टोर की हुई है।
समटाइम्स कुछ सिनारियोज में हमें क्या करना पड़ता है, ये जो इंफॉर्मेशंस है ये इंफॉर्मेशंस हमें स्प्लिट करनी होती है। मतलब एक रो में जैसे दिस पर लेट मी स्प्लिट, अगर मैंने इसको सेव करना मुझे रहा एनालिसिस के लिए, रिक्वायर्ड एनालिसिस के लिए, तो मैं इस इंफॉर्मेशंस को इस वे में भी सेव कर सकता हूँ। लेट्स से कि दिस इज माय इंफॉर्मेशंस एंड लेट्स से इट इज स्टोर लाइक दिस वन। ठीक है, तो मैं इस इंफॉर्मेशन को लेट्स से दिस माय प्रोडक्ट आईडी एंड यहाँ पे डिटेल्स का एक कॉलम है, जिस डिटेल्स के कॉलम में अभी ये इंफॉर्मेशन सेव है कॉमा सेपरेटेड, और इसका लेट्स से आईडी है 1, दिस इज द प्रोडक्ट 1, लेट्स से दिस इज माय प्रोडक्ट आईडी एंड लेट्स से दिस इज द डिटेल्स। ये करंट इंफॉर्मेशन है जो हमारे टेबल्स में स्टोर है। तो इस इंफॉर्मेशन को मैं ऐसे भी स्टोर कर सकता हूँ कि 1 1 2 बार प्रोडक्ट आईडी, और ये इंफॉर्मेशन जो रहेगा ये इंफॉर्मेशन कुछ इस वे से मैं यहाँ पे स्टोर करूँगा। फर्स्ट सेल में आएगा कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज जो है, इन कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज को मैं सिंगल सिंगल रोज में स्टोर कर सकता हूँ। राइट, दिस इंफॉर्मेशन कैन बी स्टोर लाइक दिस आल्सो। ये किस लिए होता है, ये ऐसा कब करने की जरूरत होगी? लेट्स से मेरे पास एक ऐसा सिनेरियो है कि लेट्स से एक एक्सीडेंट आईडी है, एक्सीडेंट को एक नंबर है, लेट्स से एक्सीडेंट आईडी, देन लेट्स से पर्सन नेम है, पर्सन का नेम एंड इंज्योर्ड क्या बोलेंगे इसको, इंज्योर्ड सेक्शन या पार्ट, इंज्योर्ड पार्ट। ठीक है, सो लेट्स से एक्सीडेंट 1 है, पर्सन का नाम कुछ मैंने ए लिखा है, इंज्योर्ड पार्ट में लेट्स से उसका हेड इंज्योर्ड हुआ है, उसका हैंड इंज्योर्ड हुआ है, लेग भी इंज्योर्ड हुआ है। ठीक है, ये लेट्स से सेकंड एक्सीडेंट है, ये सेकंड पर्सन है जिसका सिर्फ हेड इंज्योर्ड हुआ है। ठीक है, और ये तीसरा पर्सन है एक्सीडेंट वाला सी, जिसका लेट्स से लेग इंज्योर्ड हुआ है। ठीक है, तो ये ऐसी इंफॉर्मेशंस है। ठीक है, तो मुझे अगर एनालिसिस करना है कि मुझे ऐसा एनालिसिस करना है कि टेल मी द पर्सन्स हु हैविंग हेड इंजरी, तो कैसे इसको एनालिसिस कर सकते हैं? इस पर्टिकुलर डेटा को अगर मुझे एनालिसिस करना रहेगा और इसमें ऐसी इंफॉर्मेशन सेव है, और आपको रिपोर्ट्स में ऐसा एनालिसिस करना है कि हेड इंजरी के पेशेंट्स कितने हैं, लेग इंजरीज के पेशेंट्स कितने हैं, और हैंड इंजरीज के पेशेंट कितने हैं, ये काउंट आपको दिखाना है। तो दिस इंफॉर्मेशन के ऊपर आप कर सकते हो क्या काउंट? यस सर। कैसे कर सकते हो? मुझे इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशंस के बेसिस पे आप एग्रीगेशंस कैसे करोगे, क्योंकि दिस इंफॉर्मेशंस कंटेन सेल कंटेन मल्टीपल इंफॉर्मेशंस। जब तक इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशंस को आप कुछ इस वे से प्रेजेंट नहीं करते तब तक आप नहीं कर पाओगे। मैं यहाँ पे इसको वापस से करूंगा कि लेट्स से एक्सीडेंट 1 ए, यहाँ पे लिख दूंगा मैं हेड, अगेन 1 पेशेंट ए, हैंड, अगेन 1 पेशेंट ए, लेग, देन आएगा सेकंड पेशेंट, पेशेंट बी, हेड। इंफॉर्मेशंस जो है वो इंफॉर्मेशन सिंगल वैल्यू जब तक इस कॉलम में नहीं आएगी तब तक काउंट नहीं ले पाओगे। अंडरस्टैंड हो रहा है?
and this 3 and then C 10 leg. ठीक है, इसको किया and paste it over here. Now I can simply do is in sorry this इस particular table को now I can simply if filter on hand तो मुझे बताएगा हैंड वाले कितने पेशेंट है, 2. इफ आई फिल्टर ऑन हेड कितने हेड के, 2. करेक्ट. इसमें फिल्ट्रेशन लगा सकते थे क्या अपन? अगर इस पर्टिकुलर डेटा के ऊपर भी मैंने लेट से फिल्ट्रेशंस लगाए तो यहाँ पे आपको फिर वो पर्टिकुलर सेक्शंस, जैसे इसमें भी हेड है इसमें भी हेड है ना, समझ में आ रहा है? काउंट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दिस इंफॉर्मेशंस को नॉर्मलाइज करना पड़ेगा. ये जो डिफरेंट सेल में जो इंफॉर्मेशन है कॉमा सेपरेटेड, इनको इस वे में स्प्लिट करना पड़ेगा. देन आई कैन एबल टू कैलकुलेट काउंट फॉर द पेशेंट कि कितने पेशेंट्स को हेड की इंजरी है, कितने पेशेंट्स को हैंड की इंजरी है और कितने पेशेंट्स को लेग की इंजरी है. ये क्लियर है? ये समझ में आ रहा है? Yes. So this is the same scenario over here. यहाँ पे भी इंफॉर्मेशन कैसी स्टोर है, कॉमा सेपरेटेड स्टोर है. हाँ, हम इसको इस एनालिसिस को हम नहीं करने वाले, बट समटाइम्स आपको ऑप्शन पता होना चाहिए कि अगर एनालिसिस करना है आपको, इस केस में सिनेरियो रहेगा लेट्स से कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज है, माइट भी ये यहाँ पे कॉमा है, आपका डेटा माइट भी पाइपलाइन सेपरेटेड हो, कोई और सेपरेटर यहाँ पे मेंशन हो, डॉट हो, आईफोन हो, कुछ भी हो सकता है. मेरे केस में लेट्स से कि वो कॉमा सेपरेटेड है, तो मैं इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशंस को रो में कैसे स्प्लिट कर सकता हूँ. हमने एक ऑप्शन देखा था राइट, कस्टमर डिम में दिस जॉन 24 को हमने अलग अलग कॉलम्स में स्प्लिट किया था राइट. जॉन को एक कॉलम में, 24 को एक कॉलम में, हमने स्प्लिट कॉलम का ऑप्शन यूज किया था. सो सेम ऑप्शंस हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, लेकिन दिस टाइम्स इंस्टेड ऑफ स्प्लिटिंग द columns into rows, we can split those columns into the rows. Instead of splitting columns into different columns, we can split this column into rows. कैसे कर सकते हैं? Let's say मैंने split column पे क्लिक किया, by delimiter, this delimiter is comma, my delimiter is comma, each occurrence of the delimiter, and in advanced options we have, I wanted to split this informations in rows and simply say okay. So you see this sport 100 helmet एक रो में चला गया and red एक रो में चला गया. ये रो क्या हुआ, डुप्लीकेट हुआ, इंफॉर्मेशन स्प्लिट हुआ, बट इंस्टेड ऑफ स्प्लिटिंग इनटू कॉलम्स इट स्प्लिट इनटू रोज. कहाँ पे हमने ऑप्शन चेंज किया, दिस स्प्लिट कॉलम बाय डिलिमिनेटर्स में वी हैव दिस एडवांस ऑप्शंस. जो बाय डिफॉल्ट सिलेक्शन होता है कॉलम्स, हमने उस सिलेक्शंस को सिलेक्ट किया रोज में, तो इंफॉर्मेशन क्या हुई, रोज में स्प्लिट हुई. अंडरस्टैंड हुआ कैसे कर सकते हैं हम ये? Yes. Okay, so I'll just remove this. We don't require actually this one. Just wanted to show you the how we can do this. Okay. Fine, this much transformation is fine over here. One more transformations I wanted to do is for this customer dim. Last times we forgot to do that. Basically I wanted to calculate the age for this particular customer. मेरे पास customer का birth date available है यहाँ पे. So using birth date column we can calculate age. Age कैसे calculate करते हैं हम? ये हाथ की जो डेट है उस डेट से हम उस पर्टिकुलर डेट को माइनस कर देते हैं, और जो भी डेज आएंगे उस डेज को हम क्या करते हैं, सिंपली अगर डेज में आते हैं तो 365 से डिवाइड करके उसको ईयर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं राइट. तो हमारे पास अगर ये बर्थ डेट का कॉलम अवेलेबल है, एक डे का कॉलम अवेलेबल है, आई वांटेड टू कैलकुलेट एज,
तो इस पर्टिकुलर ऐड कॉलम के सेक्शंस में इफ आई गो टू दिस डेट वी हैव रेडीमेड ऑप्शन ओवर हियर एज. सो सिंपली आई क्लिक ऑन दिस एज. ये एक एज कैलकुलेट करके देगा मुझे विथ डेज एंड टाइम. आई डोंट वांट टाइम, सो इसका मैं डेसिमल प्लेसेस चेंज करके इसको होल नंबर में कन्वर्ट कर दिया. ये जो वैल्यू आई है ये डेज में आई है बेसिकली फॉर टुडे एंड दिस पर्टिकुलर डेट. इसके बीच में कितने डेज है, दिस वन डेट 21,542 डेज. डेज को हम ईयर में कैसे कन्वर्ट कर देंगे, 365 से डिवाइड कर सकते हैं, करेक्ट. सो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे कस्टम कॉलम का यूज कर सकता हूँ. सो मैं इस पर्टिकुलर कॉलम को नाम दूंगा लेट्स से एज इन डेज एंड एक नया कस्टम कॉलम क्रिएट करूंगा ऐड कॉलम सेक्शंस में, जिसको नाम दूंगा मैं एज इन ईयर्स. एक्सप्रेशन में लिखूंगा यहाँ पे वी ऑलरेडी हैव दिस एज इन डेज का कॉलम. इसको सेलेक्ट करूंगा, इंसर्ट पे क्लिक करूंगा, वो यहाँ पे आ जाएगा. डिवाइड बाय, सिंपली मैं डिवाइड का सिंबल यूज करूंगा एंड सी से 365. दिस इज माय एक्सप्रेशन. नो सिंटैक्स एरर, सिंपल एक्सप्रेशंस. डेज को 365 से डिवाइड कर दिया. एक वैल्यू मिलेगी मुझे, दिस पर्टिकुलर वैल्यू जो मुझे ईयर्स देगी. Again, it contain multiple decimal places, so using round up or round down options, I can convert this into the whole number. Let's say for now, I can use, let's say use round up. So round up use करके this particular informations I'm getting. Instead of creating a new column, simply I can say just wanted to transformations on the same column. ठीक है. This is how we can create the age in years column, or we can calculate the age. कैसे कैलकुलेट किया हमने, डेट का कॉलम सेलेक्ट किया एंड यूजिंग डेट कॉलम्स वी सिंपली यूज एज ऑप्शंस अवेलेबल विद अस. हमारे पास रेडीमेड एज ऑप्शंस अवेलेबल है, उसको यूज करके हम एज कैलकुलेट कर लिया पर्टिकुलर कस्टमर का. समझ में आया? हेलो. Yes, sir. Okay, so now let fetch more tables. Let's go to the home, new source .csv. We have this return table also. Let fetch this return table, see what informations it includes. It includes basically return date, territory key, product key, and return quantity. Those informations is there. Basically this is the fact table which contains business value. यहाँ पे कोई भी प्रॉपर्टी आपको दिखेगा नहीं, एट्रीब्यूट दिखेगा नहीं, लाइक दिस. ये कस्टमर डीम, प्रोडक्ट कैटेगरी डीम, प्रोडक्ट सब कैटेगरी डीम, इवन द प्रोडक्ट डीम में जाऊंगा तो वहाँ पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है. प्रोडक्ट का नाम है, उसका मेक है, प्राइस है, ऑल दिस इंफॉर्मेशन अवेलेबल फॉर पर्टिकुलर प्रोडक्ट. बट यहाँ पे रिटर्न के इसमें क्या रहेगा, ओनली प्रोडक्ट की रहेगी. 312 नंबर का प्रोडक्ट है, 312 नंबर के प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन दिस प्रोडक्ट टेबल के अंदर अवेलेबल है. बट दिस फैक्ट टेबल डजंट हैव this much that informations. It only contains the keys, the primary key and the foreign keys. So this is the return tables, this is the fact tables. We don't require to do any transformations on this, and simply load this and rename it as a return fact. This is a fact table, so I'll rename it as a fact. And this product table is my dimension table, so I'll just rename this as a product table. Okay, let's load one more dimension tables, which is nothing but a territory dim. This territory dim is nothing but a region की information यहाँ पे है. जैसे this is my sales territory की यहाँ पे दी है. region, हर एक region को एक की provide की हुई है. country है, continent है. This informations contain, this table contain this informations: northwest, northeast, central, southwest, southeast. अलग अलग region को एक की provide की हुई है. वो रीजन किस कंट्री में आता है एंड किस कॉन्टिनेंट में आता है, ये इंफॉर्मेशन इस टेबल में. सो सिंपली वी लोड दिस इंफॉर्मेशंस
and rename this as a territory dim. Now we have all dimension tables and one fact tables. Also, we wanted to load the main fact table, which is nothing but a sales fact table. If I go to that particular folder, मैं उस particular folder में गया जहाँ पे ये information save है, तो देखो यहाँ पे कुछ information इस वे से भी save किया, adventure work sales 2015, sales 2016, 17. हेलो सर। हाँ बोलो। सर सेल्स फैक्ट टेबल अभी नेक्स्ट है। Sales क्या? फैक्ट टेबल हाँ अभी मतलब ये तीनों टेबल है 15, 16, 17 उसका मिला के सेल्स फैक्ट टेबल बनता है ना सर? हाँ बनता है ना। दैट्स व्हाट वी गोइंग टू सी ना कि दो तीनों टेबल्स के मिला के कैसे बनाएंगे फैक्ट टेबल्स। यस सर। Okay, so we have those Yes. three tables over here 2015, 16 and 17. If I open this 15 का डेटा, ठीक है, तो ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन इस टेबल में है। क्या इंफॉर्मेशन है कि ऑर्डर डेट है, स्टॉक डेट है, ऑर्डर नंबर है, प्रोडक्ट की है, कस्टमर की है, टेरिटरी की है, ऑर्डर लाइन आइटम है और ऑर्डर की क्वांटिटी है। सो इन शॉर्ट कौन सा प्रोडक्ट किस कस्टमर ने कौन सी डेट को ऑर्डर किया है, कितनी क्वांटिटी में, ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे नंबर्स के फॉर्म में सेव है। प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशंस प्रोडक्ट डिम में है, कस्टमर की इंफॉर्मेशंस कस्टमर डिम में है, टेरिटरी की इंफॉर्मेशंस टेरिटरी के डिम में है कि वन टेरिटरी बिलोंग्स टू विच रीजन, दिस 14657 कस्टमर इज विच बिलोंग्स टू, इसका नाम, मेल आईडी, जेंडर वगैरह, ये इंफॉर्मेशन कस्टमर टेबल्स में। हमारे फैक्ट टेबल्स ऑलवेज कंटेन बिजनेस नंबर्स एंड दिस इज व्हाट दिस पर्टिकुलर फैक्ट टेबल्स कंटेन द इंफॉर्मेशन। कितने कॉलम है इसमें? कुछ 7-8 कॉलम्स कुछ अवेलेबल है इसमें। सेम कॉलम विद सेम डेटा टाइप्स अवेलेबल फॉर 2016 ऑल्सो एंड 17 ऑल्सो। मेरे पास जो 15, 16, 17 के जो 3 टेबल अवेलेबल है यहाँ पे, जैसे मैंने 15 को ओपन किया, 15 में जैसी टेबल का स्ट्रक्चर है, ऑर्डर डेट, स्टॉक डेट, कॉलम्स के नाम है, उनका डेटा टाइप है, सेम कॉलम्स के नाम, उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स इस 16 के टेबल में है, उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स 17 में है, सब में सेम इंफॉर्मेशन से। नाउ let me load those table in Power BI and do the transformations on them. ठीक है, तो मैं न्यू सोर्स में जाऊंगा, टेक्स्ट CSV, आई लोड दिस 2015 and say okay. Same way I again go to the text CSV, this time I load 2016 and say okay, and for 2016 also I load, 17 also I load this table, say okay. ठीक है, इफ आई सी दिस, मेरे पास 15, 16, 17 की जो तीनों टेबल है, वो तीनों टेबल मैंने पावर BI में लोड कर दी। नाउ इंस्टेड ऑफ कीपिंग दोस 3 टेबल्स, मैं तीनों टेबल्स का कंबाइनली एक टेबल बना सकता हूँ जिसमें सारी इंफॉर्मेशन हो। ठीक है, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो टेबल है इसका स्ट्रक्चर सेम है, सिर्फ इंफॉर्मेशन अलग अलग है, एक के में 15 की, एक में 16 की, एक 17 की। तो एक टेबल की, ये जो मिनट से मेरा 15 का टेबल है, इसके नीचे मैं 16 का टेबल ऐड कर दूंगा, 16 के नीचे 17 का ऐड कर दूंगा। सो मैं क्या कर रहा हूँ, इंफॉर्मेशन को स्टैक कर रहा हूँ, एक दूसरे के ऊपर स्टोर कर रहा हूँ, एक टेबल को दूसरे टेबल के ऊपर स्टोर कर रहा हूँ। उनका हेडर जो है, दिस हेडर, वो हेडर एक ही रहेगा, बस इंफॉर्मेशन जो है वो इंफॉर्मेशन एक दूसरे के ऊपर स्टैक हो जाएगी, 15 फिर 16 फिर 17। सो ऐसा स्टैकिंग जो रहेगा उसको हम पावर BI में बोलते हैं अपेंड। टेबल्स को एक दूसरे के ऊपर अपेंड करते हैं। कब करते हैं? जब ऐसा सिनारियो हो कि टेबल की इंफॉर्मेशंस, टेबल का स्ट्रक्चर जो है, टेबल का स्कीमा जो है, वो स्कीमा सेम है बट इंफॉर्मेशंस अलग अलग है। उस टाइम पे मैं टेबल्स को अपेंड करके, इंस्टेड ऑफ कीपिंग मल्टीपल टेबल्स, मैं टेबल्स को एक ही जगह पे अपेंड कर दूंगा। कैसे करेंगे आप? क्लोज वर्क होता है। हेलो,
रोज वाढतो सर त्याने फक्त. नहीं, मैं समझा नहीं, क्या बोल रहे हो? मतलब वो अपेंड में सर रोज रोज ईयर सर वो बढ़ती है सर उससे. हाँ, अपेंड में सिर्फ रोज बढ़ेंगे, राइट? सो दैट्स वी आर गोइंग टू डू कि हम अपेंड में क्या करेंगे, 15 16 17 का टेबल्स को एक दूसरे में स्टैक कर देंगे, ताकि इंस्टेड ऑफ कीपिंग 3 टेबल्स, एक ही टेबल्स में सारी इन्फॉर्मेशन हो. कैसे अपेंड करेंगे? वी हैव दोज ऑप्शंस ओवर हियर. अपेंड क्यूरीज. अपेंड क्यूरीज की सेक्शंस में वी हैव अपेंड क्यूरीज एंड अपेंड क्यूरीज एज अ न्यू. दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं हमारे पास. अपेंड क्यूरीज मतलब क्या होता है? मैंने अगर ये 2015 का टेबल सेलेक्ट किया हुआ है एंड इफ आई चूज अपेंड क्यूरीज ऑप्शंस, तो दिस 15 का टेबल के अंदर 16 एंड 17 की इंफॉर्मेशन चली जाएगी. सो दिस 15 का टेबल क्या होगा? इंक्लूड 16 एंड 17 इंफॉर्मेशन. एंड अपेंड क्यूरीज एज अ न्यू, ये क्या ऑप्शन रहेगा? एक नया टेबल बनेगा यहाँ पे. ये 3 टेबल वैसे की वैसे रहेंगे, एक चौथा टेबल बनेगा यहाँ पे जिसमें तीनों टेबल की इंफॉर्मेशन. फॉर बेस्ट ऑप्शन एज पर द नीड आप सेलेक्ट कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे अपेंड क्यूरीज एज अ न्यू कर रहा हूँ. मैं एक नया ही टेबल यहाँ पे क्रिएट करूंगा जो कंटेन्स 3 टेबल्स, राइट? सो आई एम हैविंग व्हेन आई डू द अपेंड क्यूरीज एज अ न्यू, एक पॉपअप आएगा कि कितने टेबल्स आपके पास है. लेट्स से आई एम हैविंग 3 टेबल्स, 3 एंड मोर टेबल्स. फर्स्ट टेबल जो मैंने सेलेक्ट किया था 15 का, वो तो ऑलरेडी यहाँ पे अपेंड की लिस्ट में आ गया. आई वांटेड टू सेलेक्ट 16 एंड आल्सो द 17. जो अपेंड करने मैंने टेबल्स को सेलेक्ट कर दिए यहाँ पे, एंड सिंपली आई से ओके. तो देखो यहाँ पे अपेंड नाम का एक टेबल क्रिएट हो जाएगा. इफ आई वांटेड टू चेक कि अपेंड हुआ है कि नहीं हुआ, मैं क्या कर सकता हूँ? यूजिंग दिस ऑर्डर डेट कॉलम, यहाँ पे एक नया कॉलम ऐड कर सकता हूँ ईयर्स का, जो मुझे डायरेक्टली इंफॉर्मेशन दे कि कितने ईयर का डेटा मेरे पास है, राइट? सो इफ आई ड्रॉप डाउन दिस ईयर कॉलम, सी मेरे पास 15 16 17 तीनों साल का इंफॉर्मेशन इस पर्टिकुलर एक टेबल में अवेलेबल है, राइट? तो मुझे इन 3 टेबल की जरूरत है क्या? No. नो, राइट? बट वी कांट डिलीट दिस. इफ लेट्स से इस 2015 के टेबल को मैंने डिलीट करने के लिए क्लिक किया, तो यहाँ पे मुझे एक वो एरर देगा, डिलीट करने नहीं देगा. क्या एरर देगा? कि आपने ये 2015 16 17 को अपेंड करके एक नया टेबल, शॉर्ट आपने एक आउटपुट निकाला इन 3 टेबल को यूज करके. तो अपेंड 1 डिपेंड करता है इन 3 टेबल की इंफॉर्मेशन के ऊपर. ये 3 टेबल के रेफरेंस से बना हुआ टेबल है अपेंड 1. तो जब तक अपेंड 1 यहाँ पे है, आप इन 3 टेबल्स को डिलीट नहीं कर सकते. तो इनको लेट्स से मैंने अभी क्लोज एंड अप्लाई किया. इफ आई डू द क्लोज एंड अप्लाई, तो यहाँ पे डेटा सेक्शंस में देखो कितने टेबल लोड होते हैं. ठीक है, डेटा सेक्शंस में कितने टेबल यहाँ पे लोड हुए? 2015 16 17 का 3 टेबल लोड हुए. अपेंड भी लोड हुआ. बेसिकली यहाँ पे हमें बस अपेंड की ही जरूरत थी, ये 3 टेबल्स की जरूरत नहीं थी हमें. तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं इनेबल लोड ऑप्शन यूज कर सकता हूँ. इनेबल लोड, डिसेबल लोड्स, क्या ऑप्शन है? अगर मैंने कुछ टेबल्स को यूज करके एक नया टेबल बनाया है, उसकी सारी इंफॉर्मेशन इस टेबल में अवेलेबल है अपेंड 1 में, तो मैं अपेंड 1 को ही लोड करूंगा. इन बाकी टेबल्स को मैं बस क्या करूंगा? इनेबल लोड का ऑप्शन का ऑफ कर दूंगा. तो मैं इस टेबल पे क्लिक करूंगा, देखो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है इनेबल लोड, जो बाय डिफॉल्ट ऑन है. मैं इसको ऑफ कर रहा हूँ. इसको देखो, इसका फॉन्ट जो है कैसे कर्सिव में या इटैलिक हो गया है इसका फॉन्ट. इसको भी मैं इनेबल लोड कर रहा हूँ. पर लेकिन जब इनेबल लोड कर रहा हूँ मैं, तो ये यहाँ पे देखो एक ऑप्शन उसके नीचे जो था, जो टिक मार्क था, इंक्लूड इन रिपोर्ट रिफ्रेश, वो बाय डिफॉल्ट ऑन है अभी. इसका मतलब है कि जब आपका रिपोर्ट रिफ्रेश होगा, तो ये जो टेबल्स है जो आपने अभी इनेबल लोड किए हैं, वो रिफ्रेश होंगे और डेटा को अपडेट करेंगे. लेकिन जब आप क्लोज एंड अप्लाई कर रहे हो, तो क्लोज एंड अप्लाई करने के टाइम पे ये पावर BI डेस्कटॉप में लोड नहीं होंगे. सी, वो 3 जो टेबल थे जिनको अपन ने इनेबल लोड किया, वो यहाँ पे लोड नहीं हुए, लेकिन सिर्फ अपेंड 1 लोड हुआ, जिसमें तीनों ईयर्स की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, राइट? तो अपेंड इनेबल लोड ऑप्शन समझ में आया क्या काम करता है?
अगर इनेबल लोड मैंने ऑफ कर दिया किसी टेबल का, तो वो टेबल क्या करेगा, रिफ्रेश में तो रहेगा, रिपोर्ट जब रिफ्रेश होगा तो वो टेबल रिफ्रेश होगा, लेकिन पावर BI डेस्कटॉप में वो पावर क्यूरी से लोड नहीं होगा। ठीक है, सेम ऑप्शन जो है यहाँ पे, जो मेरा इनेबल लोड के नीचे है इंक्लूड इन रिपोर्ट रिफ्रेश, उसको अगर मैंने ऑफ कर दिया तो क्या होगा, जब रिपोर्ट रिफ्रेश होगा तो वो पर्टिकुलर रिपोर्ट भी, पर्टिकुलर टेबल भी रिफ्रेश नहीं होगा। लेट्स से दिस पर्टिकुलर 2015 का जो है, मैंने लेट्स से इसको इनेबल लोड कर दिया वापस मैंने, एंड दिस टाइम आई ऑफ दिस ऑप्शंस इंक्लूड इन रिपोर्ट रिफ्रेश को मैंने ऑफ कर दिया, एंड इनेबल लोड भी मैंने ऑफ कर दिया। तो अब इस टेबल में मेरा इंक्लूड इन रिपोर्ट रिफ्रेश एंड इनेबल लोड इंफॉर्मेशंस भी, ये जो दोनों ऑप्शंस वो अनचेक है। तो अब क्या होगा, ये एडवेंचर वर्क सेल जो इंफॉर्मेशन से अभी तक की इंफॉर्मेशन, लेट से ऐसे कंसिडर करो कि ये करंट का टेबल है मेरा, 2025 का टेबल है, जिसमें लेट से मार्च तक की इंफॉर्मेशन यहाँ पे पुट की हुई है, अभी अप्रैल की इंफॉर्मेशन, मई की इंफॉर्मेशन आनी बाकी है। तो अगर इस टाइम पे मैंने इस पर्टिकुलर टेबल का ऑप्शन जो है इंक्लूड इन रिपोर्ट रिफ्रेश वाला ऑप्शन ये मैंने बंद कर दिया, तो अभी तक मार्च तक की जो इंफॉर्मेशन है वो बस लोड करेगा। इन फ्यूचर अगर लेट्स से अप्रैल का इंफॉर्मेशन ऐड हुआ, तो जब ये रिपोर्ट रिफ्रेश होगा और उस पर्टिकुलर ये जब रिफ्रेश होगा, तो ये पर्टिकुलर टेबल जो है वो रिफ्रेश की लिस्ट में होगा ही नहीं, क्योंकि आपने उसको क्या कर दिया है, ऑफ कर दिया है रिपोर्ट को रिफ्रेश। तो सेल्स 2015 की जो मार्च तक की इंफॉर्मेशन थी वही रहेगी, नया डेटा इसमें ऐड ही नहीं होगा और वो आपके रिपोर्ट्स में दिखेगा ही नहीं। इसीलिए इंक्लूड इन रिपोर्ट रिफ्रेश हमें क्या करना पड़ता है, ऑन रखना पड़ता है। इनेबल लोड को हम डिसेबल इनेबल करके एज पर आवर रिक्वायरमेंट हम इसको क्या करते हैं, चेक अनचेक करते हैं। हमारे केस में हमें इसकी जरूरत नहीं है, बिकॉज वी ऑलरेडी क्रिएटेड अ टेबल विच कंटेन ऑल द 3 years इंफॉर्मेशन अपेंड टेबल। इसको मैं नाम दे सकता हूँ, लेट्स से अपेंड 1 को जो दिया है मैं नाम देता हूँ सेल्स फैक्ट करके। ठीक है, ये सेल्स फैक्ट टेबल मैंने क्रिएट तो कर दिया। नाउ इफ आई, मैंने यहाँ पे लोड भी कर दिया। अभी मुझे एक बात बताओ कि लेट्स से दिस पर्टिकुलर फोल्डर, जिस फोल्डर में हमारे ये 3 इंफॉर्मेशन है 15, 16, 17, अभी मान लो कि यहाँ पे एक और इंफॉर्मेशन है 2018 की, एडवेंचर अंडरस्कोर स्केल अंडरस्कोर 2018, ऐसी एक एक्सेल जो है वो एक ऐड हो गई। लेट्स से कि यहाँ पे मैं इस एक्सेल को डुप्लीकेट कर रहा हूँ, इसको कॉपी कर दिया मैंने और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, और इसको नाम दे दिया, लेट्स ओपन दिस, इसको मैंने लेट्स से रीनेम कर दिया 2018। यहाँ पे मैं रिप्लेस कर रहा हूँ 2017 को, यहाँ पे 17 नहीं है, 2017 को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ 2018 से। ठीक है, इसको क्लोज कर रहा हूँ, आई सेव दिस इंफॉर्मेशन, इस एक्सेल को मैं क्लोज कर रहा हूँ एंड इसको मैं रीनेम कर रहा हूँ एज ए 2018। लेट्स से दिस इज माय 2018 इंफॉर्मेशन। नाउ टेल मी, ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट में जब रिफ्रेश कर रहा हूँ यहाँ पे, देखो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है, मैं होम में अभी देखो रिफ्रेश ऑप्शन दिख रहा है, इसको अगर रिफ्रेश कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे 2018 की इंफॉर्मेशन आएगी क्या? Just give me a minute. इसमें वो इंफॉर्मेशन आएगी क्या? ठीक है, ये इंफॉर्मेशन आएगी क्या? 2018 का जो मैंने टेबल इस फोल्डर में ऐड किया है, वो इंफॉर्मेशन मेरे करंट फाइल में आएगी क्या रिफ्रेश करने के बाद? नहीं सर, नहीं आएगी, क्योंकि हमने 15, 16, 17 के जो टेबल्स थे वो कैसे सेलेक्ट किए थे, इंडिविजुअली हर एक टेबल को सेलेक्ट किया था ना।
तो जब तक हम 18 का टेबल यहाँ पे लाएंगे नहीं और उसको इस सेल्स फैक्ट टेबल में ऐड नहीं करेंगे, जैसे हमने 15, 16, 17 के टेबल अपेंड में ऐड किए थे, वैसे 18 का टेबल जब तक ऐड नहीं करेंगे तब तक वो इंफॉर्मेशन यहाँ पे इस सेल्स फैक्ट टेबल में आएगी नहीं। सो मेरे पास ऑलवेज यहाँ पे 15, 16, 17 के ही 3 ऑप्शन रहेंगे। सो ये डायनेमिक वे नहीं है। तो हो सकता है कि कंपनी के पास अभी इंफॉर्मेशन सिर्फ 2000 लेट्स से कि आपकी कंपनी कोई कंपनी है जो ऐसी इंफॉर्मेशन सेव कर रही है एक फोल्डर के अंदर, और उसके पास 2025 की इंफॉर्मेशन नहीं है, वो ईयर एंड होने के बाद वो यहाँ पे जैसे एक्सेल्स बनी हुई है वैसे एक एक्सेल सेम नाम से बस ईयर चेंज करके यहाँ पे वो इंफॉर्मेशन अगर वो डाल दे तो उनका जो रिपोर्ट्स जो बना के दिया है वो उसमें अगर रिफ्रेश कर दे तो वो ऑटोमेटिकली वो इंफॉर्मेशन वो डेटा इसमें ऐड होना चाहिए इस टेबल के अंदर। हमें कुछ ऐसा वे, ऐसा डायनेमिक वे ढूंढना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस मेथड अपेंडिंग सेम स्ट्रक्चर के टेबल्स को अपेंड करने से अच्छा मैं क्या करूंगा यहाँ पे न्यू सोर्स पे जाके दूसरा ऑप्शन यूज करूंगा। लेट्स से मेरे पास है फोल्डर ऑप्शंस, एक अलग कनेक्टर है फोल्डर कनेक्टर, मैं उसको सेलेक्ट करूंगा और इंस्टेड ऑफ हर एक ये जो फाइल को लोड करने के लिए हमने एक पर्टिकुलर फाइल को सेलेक्ट करके लोड किया था ना, तो मैं क्या करूंगा ये फाइल्स जहाँ पे स्टोर है जिस फोल्डर के अंदर उस फोल्डर का पाथ इसको दे रहा हूँ। लेट्स से कि मेरे पास ये पावर बीआई फोल्डर के अंदर एडवेंचर वर्क फोल्डर में एडवेंचर वर्क CSV नाम का एक फोल्डर है जिसके अंदर ये मेरी सारी फाइल्स यहाँ पे अवेलेबल है। जब मैं इसको ओके करूंगा तो देखो उस पर्टिकुलर फोल्डर में जितनी फाइल्स अवेलेबल है वो सारी की सारी दिखेंगी, जिसमें 15, 16, 17, 18 की इंफॉर्मेशन भी अवेलेबल है, राइट। सो मैं अभी के लिए यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक कर रहा हूँ। मैं किस में इंटरेस्टेड हूँ, मैं सिर्फ सेल्स की जो फाइल्स है मेरी उसमें इंटरेस्टेड हूँ, मुझे वही फाइल्स चाहिए, ये बाकी की फाइल्स नहीं चाहिए। सो व्हाट आई कैन डू, मैं इस नेम का जो मेरा कॉलम है इस नेम के कॉलम पे फिल्टर लगा सकता हूँ कि मुझे सिर्फ ऐसे नेम्स दो जिसमें सेल्स लिखा हुआ हो। तो मैं यहाँ पे फिल्टर लगाऊं कि गिव मी सच नेम्स विच कंटेन्स सेल्स वैल्यू। जब मैंने ऐसा फिल्ट्रेशन लगाया तो मुझे 15, 16, 17, 18 उतना ही फाइल्स मिला जिसमें सेल्स है, राइट। इसका प्री रिक्विजिट्स क्या है कि कंपनी को हर एक फाइल का नाम सेम रखना पड़ेगा, ऐसे ही उनको सेव करना पड़ेगा, एडवेंचर अंडरस्कोर सेल्स अंडरस्कोर 2015 जैसे 16, 17, 18, 19 ऐसी वे से वो इसी नाम से वो इंफॉर्मेशन सेव करते चलेंगे। नाउ आई एम हैविंग दोज 4 फाइल्स, तो मेरे पास यहाँ पे एक ऑप्शन है कंटेंट में कंबाइन फाइल्स का। मैं सिंपली अगर इस पे कंबाइन पे क्लिक करता हूँ तो एक पॉपअप विंडो आएगा जो मुझे एक टेबल क्रिएट, जो मेरा एक प्रीव्यू टेबल है जो क्रिएट होने वाला है उसका एक प्रीव्यू दिखाएगा। इफ आई सिंपली से ओके, तो जैसे अपेंड का इंफॉर्मेशन हमें मिला था, ये देखो ये हेल्पर क्यूरीज वगैरह ये पावर बीआई ने खुद ने क्रिएट की हुई है। जैसे हमें अपेंड का आउटपुट मिला था ये सेल्स फैक्ट का टेबल, वैसे ही टेबल मुझे यहाँ पे इस नए वे से मिला है। अगर इसका मैंने ईयर का कॉलम क्रिएट करके चेक किया कि हाउ मेनी ईयर्स का इंफॉर्मेशन उसमें है, लेट्स सी ईयर, इफ आई ड्रॉप डाउन दिस एंड से लोड मोर, तो मुझे 15, 16, 17, 18 चारों साल का डेटा दिख रहा है यहाँ पे। अभी लेट्स से मैं यहाँ पे और एक इस पर्टिकुलर फोल्डर में अभी 18 का ऑलरेडी वहाँ पे प्रेजेंट था, राइट, हमने क्रिएट किया था। तो लेट्स से मैं इसको डुप्लीकेट कर रहा हूँ और 19 का यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। आफ्टर लेट्स रिफ्रेश दिस अगेन एंड सी कि 19 का डेटा आता है कि नहीं आता, ठीक है। सो मैं यहाँ पे इसको कर रहा हूँ 19, इंफॉर्मेशन जो है अंदर की उसमें भी मैं चेंज कर रहा हूँ। सो इंस्टेड ऑफ लेट्स से दिस F, I'll say replace what 2018 with 2019, say replace all, ओके क्लोज। मैं इसको सेव कर रहा हूँ फाइल को, क्लोज दिस फाइल्स। सो प्रैक्टिकली मेरे पास यहाँ पे अभी 2019 की फाइल भी प्रेजेंट है जिसमें 19 का डेटा है, राइट। तो मैं पावर बीआई में जाए, पावर क्यूरी में
यहाँ पे फिलहाल मेरे पास ईयर में कितने साल का डेटा है, मेरे पास 15, 16, 17, 18। यू सी रिफ्रेश तो ऑटोमेटिकली हो गया, 19 का डेटा भी ऐड हो गया यहाँ पे ऑटोमेटिकली। जहाँ पे मेरे पास पहले 18 का डेटा था, अभी 19 का डेटा भी ऐड हो गया। सो जैसे जैसे उस पर्टिकुलर फोल्डर्स में फाइल्स ऐड होती जाएंगी, आपकी पावर BI रिपोर्ट्स में रिफ्रेश के बाद तुरंत वो फाइल्स क्या होगी, मर्ज होती जाएंगी। अंडरस्टैंड हुआ ये ऑप्शंस, फोल्डर ऑप्शंस? और सर एक डाउट है। हाँ बोलो। सर फोल्डर में तो और भी फाइल्स है ना, तो वो मर्ज नहीं होगी क्या? फोल्डर में क्या? और भी फाइल्स है ना सेल्स के। नहीं देखो, सेल्स ये पर्टिकुलर फोल्डर्स में ऐसी फाइल्स जिसके नाम में सेल्स हो वो उतनी ही है, सेल्स की। ओके ओके, तो वो सिर्फ वही मर्ज करेंगे जिसमें हाँ, सेल्स हमने उस वर्ड है। इस पर्टिकुलर नेम का जो कॉलम था उसमें ये सारे नेम दिखा रहा था, हमने उसमें फिल्टर लगाया कि सिर्फ सेल्स वाले दिखाओ, तो वो उसने 4-5 फाइल जिसमें सेल्स था उनको दिखाया, उनको मर्ज किया। लेकिन अभी इसमें प्री रिक्विजिट्स क्या रहेगी, कंपनी को जो नए ईयर्स का डेटा वो स्टोर करेगी उनको इसी नाम से करना पड़ेगा, एडवेंचर वर्क्स अंडरस्कोर सेल्स, जिसमें सेल वर्ड चाहिए क्योंकि हमने सेल नाम डाला हुआ है ना, तो उसमें सेल वर्ड चाहिए। तो वो माइट भी सेव करेगी एडवेंचर वर्क सेल 2020, 21, 23 ऐसे सेव कर दी जाएगी। जैसे जैसे वो फोल्डर्स में सेव कर दी जाएगी वैसे वैसे आपका जो ये पावर क्यूरी में क्या करेगा, पहले फिल्टर रोज करेगा, ये जैसे रीनेम कॉलम्स रिमूव वगैरह ये सारे स्टेप्स करके फिर वो क्या करेगा, ये आपको ऑटोमेटिकली अपेंड करके इन्फॉर्मेशन दे देगा, और नए टेबल्स की जो एडिशन होने वाली है वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड होती जाएगी। आप सिंपली इसको क्लोज एंड अप्लाई कर दोगे तो पावर BI डेस्कटॉप में वो डेटा लोड हो जाएगा, और आपको पावर क्यूरी में आने की जरूरत नहीं है, पावर BI डेस्कटॉप में भी डायरेक्टली उसको रिफ्रेश कर दोगे तो भी नया डेटा ऑटोमेटिकली पावर क्यूरी में ऐड होकर वो क्लोज एंड अप्लाई करके पावर BI डेस्कटॉप में ऐड होता जाएगा। तो इस केस में हमें इसकी ज़रूरत नहीं है कि एडवेंचर वर्क जो हमने अपेंड से सेल्स फैक्ट टेबल्स किया था उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। सो मैं सेल्स फैक्ट टेबल्स को डिलीट कर रहा हूँ बिकॉज ऑलरेडी सेम इन्फॉर्मेशन वी गॉट फ्रॉम अनदर मेथड। सो अपेंड का ये जो इन्फॉर्मेशन था, अपेंड तो हमने बस अंडरस्टैंडिंग के लिए ये किया कि हाउ वी कैन अपेंड, बट बेस्ट यूज केस या प्रैक्टिकल सिनारियो में अपेंड से अच्छा मुझे ये फोल्डर ऑप्शंस यूज होगा। अपेंड भी यूज होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, डिपेंड करता है कि सिनारियो कैसा रहेगा, बट अपेंड हमें पता होना चाहिए कि हाउ वी कैन डू द अपेंड। सेम वे से मैं फोल्डर ऑप्शंस को यूज करके भी अपेंड कर सकता हूँ। दैट्स व्हाट आई वांटेड टू शोकेस यू। दिस इज द डायनेमिक वे टू add the new data in your existing file. क्लियर है सबको? थोड़ा थोड़ा। हेलो, क्या बोल रहे? ये क्लियर है। सो पावर क्यूरी में और एक इम्पोर्टेंट ऑप्शन है मर्ज क्यूरीज, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कल, टुमारो सॉरी। मर्ज क्यूरीज जैसे हमने अपेंड किया वैसे मर्ज है, दिस इज नथिंग बट अ जॉइंस। हम डिफरेंट डिफरेंट जॉइंस जो है, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन, इनर जॉइन, आपका सीक्वल हुआ है ना? यस सर। ओके, सो सीक्वल में जैसे हमारे पास जॉइंट्स है, सेम जॉइंट्स जो है वो जॉइंट्स हम यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं यूजिंग मर्ज क्यूरीज ऑप्शंस। कौन से जॉइंट्स यहाँ पे है एंड हाउ वी कैन परफॉर्म जॉइंट्स वो हम कल देखेंगे। प्लस इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू आपको जॉइंट्स के ऊपर कैसे क्वेश्चन करेंगे वो भी मैं कल आपको बताऊंगा। माइट बी वो SQL पॉइंट ऑफ व्यू भी आपको वैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पावर BI पॉइंट ऑफ व्यू भी पूछ सकते हैं। दोनों केस में वो क्वेश्चन जो है रहेंगे वो आपको हेल्पफुल रहेगा कि कैसे किस टाइप के क्वेश्चन जॉइंट्स पे पूछे जाते हैं, वो हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कुछ डाउट है इसमें अपेंड में? बेसिकली अपेंड ऑपरेशन इज नथिंग बट अ रो ऑपरेशन। अपेंड में क्या होता है, नंबर ऑफ रोज इंक्रीज होते हैं, कॉलम्स उतने ही रहते हैं, रोज इंक्रीज होते हैं। एंड मर्ज ऑपरेशन इज नथिंग बट अ कॉलम ऑपरेशंस, उसमें कॉलम इंक्रीज होते हैं।
ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस है बिटवीन मर्ज एंड अपेंड। पावर बीआई में आपके इसको क्वेश्चनिंग अपेंड एंड मर्ज के बीच का डिफरेंस आएगा। अपेंड की क्यूरीज के ऊपर कुछ क्वेश्चनिंग आपको की जा सकती है। मैं ऐसे बोलूँगा कि प्रैक्टिस के तौर पे आप ऐसे सिनारियोज लो, जैसे एक सिंपल टेबल क्रिएट करो जिसमें लेट से आईडी का कॉलम रखो और लेट से कोई भी एक दो कॉलम, लेट से सब्जेक्ट का एक रखो या मार्क्स का कोई भी सिंपल कॉलम, इसमें एक दो दो तीन ही रो रखो, इसको 1 नाम दो, इसको 2 दो, एंड लेट से इसको 3 दिया मैंने। और सब्जेक्ट में लेट से इसको लिया मैंने मैथ, इसको दिया लेट से साइंस, एंड इसको दिया लेट से फिजिक्स। ठीक है, और मेरे पास दूसरा एक टेबल है जिसका नाम लेट से आईडी ऐसा है, इसका नाम देखो आईडी अलग है, इसका अलग है, और इसमें लेट से A1 ऐसा आईडी है, इसमें A2 ऐसा आईडी है, इसका आईडी है A3, और अगेन इसका सब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट ऐसे है, सब्जेक्ट विल बी द सेम, ये मेरे सब्जेक्ट है। लेट्स से ऐसे दो टेबल सिंपली एक्सेल में क्रिएट करो और ट्राई टू अपेंड दिस, बट व्हेन यू डू द अपेंड, इस दोनों आईडी जो कॉलम्स है इनका डेटा टाइप सेम रख के अपेंड करने का ट्राई करो, दोनों कॉलम्स का डेटा टाइप डिफरेंट रख के अपेंड करने का ट्राई करो। यहाँ पे एक नया कॉलम भी ऐड करो, लेट्स से मार्क्स का एक मैंने कॉलम ऐड कर दिया है फर्स्ट टेबल्स के अंदर, लेट्स से इसको 10 मार्क है, इसको 20 मार्क है, और इसको लेट्स से 30 मार्क। तो एक टेबल में मेरे पास 3 कॉलम है, एक टेबल में मेरे पास 2 कॉलम है, तो अपेंड का परफॉर्म कैसे होगा, अपेंड में कितने आउटपुट आएंगे, कितने कॉलम आएंगे, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको ऐसे छोटे एग्जांपल से क्लियर हो जाएगी। ऐसे ही आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछेंगे, ऐसा सिंपल टेबल देंगे, बोलेंगे कि व्हाट इज द आउटपुट फॉर द अपेंड, अपेंड में कितने कॉलम्स आएंगे वो बताओ मुझे। ये आप ट्राई करो घर पे अपेंड के ऊपर, जितना हमने आज पढ़ा प्लस ये एक एक्सरसाइज ट्राई करो। समझ में आया कैसे एक्सरसाइज की है? सर म्हणजे एक टेबल क्रिएट करायचं आणि नवीन फाईल क्रिएट करायची त्यामध्ये, राईट? हाँ, मतलब एक एक्सेल ओपन करो, एक्सेल के अंदर एक शीट में एक टेबल रखो, सेकंड शीट में दूसरा टेबल, ताकि जब आप ये डेस्कटॉप में एक्सेल वर्कबुक को फेच करोगे एज अ कनेक्टर, तो वहाँ पे शीट 1 शीट 2 ऐसे 2 टेबल अलग अलग दिखेंगे आपको। सर तुम्ही तेव्हा अपेंड यूज केलं तर वेगवेगळ्या फोल्डर म्हणजे वेगवेगळ्या एक्सेल फाईल होत्या, आपण तर इथे शीट घेतो. या मी फक्त तुम्हाला ही एक्सरसाइज ट्राय करण्यासाठी सांगतोय की इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग 2 एक्सेल्स और 2 CSVs, आप सिर्फ अभी एक शीट में एक टेबल बनाओ, दूसरे शीट में दूसरा टेबल बनाओ, और उनको फेच करने के बाद 2 टेबल्स आप पावर क्यूरी में लेके आओगे, राइट? फिर 2 टेबल्स को अपेंड करने को ट्राई करो और मुझे आउटपुट बताओ कि इसका आउटपुट आपने कैसे, इनको अपेंड करने के बाद कैसे आउटपुट आया आपको, कितने कॉलम्स मिले आपको। अलग अलग जो सिनेरियोज मैंने बोले कि पहले 2 ही कॉलम्स रखो, 2 कॉलम्स को अपेंड करने के बाद चेक करो, फिर तीसरा कॉलम ऐड करो यहाँ पे, फिर चेक करो कि क्या आउटपुट आता है। ओके सर। ओके, सो जैसे सीक्वल की अगर मैं बात करूँ तो सीक्वल में जब अपन यूनियन ऑल करते हैं, राइट? यूनियन ऑल पता है सबको? यूनियन ऑल क्या करता है? अरे सीक्वल हुआ है ना तुम लोग का? यूनियन एंड यूनियन ऑल में डिफरेंस क्या है? हेलो, हे चले गए? सर हे सांगितलं नाही सरांनी, बाबू सरांनी. तो यूनियन, मुझे एक बात बताओ, आपने यूनियन ऑपरेशंस यूज किया है ना सीक्वल में? अभी लेट से मैं सिंपल बताता हूँ आपको, मेरे पास लेट से एक आईडी का कॉलम है, इसमें लेट से आईडी है 1 1 2 एंड 3, ठीक है? ये मेरे पास एक कॉलम है, इसको लेट से मैंने नाम दिया T1, मतलब टेबल 1 लेट से,
और ये मेरा T2 है जिसमें अगेन आईडी का कॉलम है। ये मैं सीक्वल की बात कर रहा हूँ, दिस कंसिडर दिस एज अ सीक्वल। और इसमें लेट्स से यहाँ पे है 4 4 5, ठीक है। तो अगर मैं इन दो टेबल्स को यूनियन करता हूं तो आउटपुट क्या आएगा मुझे बताओ। इन दो टेबल्स को अगर मैंने यूनियन किया तो क्या आउटपुट आएगा? सर अगर हमने इन दो टेबल्स को इंक्लूड मतलब मिक्स किया तो इनके डुप्लीकेट जो होंगे वो निकल जाएंगे अगर इनको यूनियन किया। सो इन शॉर्ट ऐसा आएगा 1 2 3 4 एंड 5, सीक्वेंस वाइज आएगा। 5 बराबर। यस ये आउटपुट yes. आएगा हमारा, किसका आएगा? दिस इज नथिंग बट यूनियन का। एंड यूनियन ऑल का क्या आएगा? और यूनियन ऑल के इसमें और डुप्लीकेट्स रहेंगे और यूनियन होंगे फिर सारे। इन शॉर्ट दिस रिमेन दिस एज इट इज, एज इट इज रहेगा। ये भी एज इट इज रहेगा, बस ऐड हो जाएगा नीचे। हाँ राइट करेक्ट। यस यस। सो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि इन यूनियन डुप्लीकेट्स रिमूव होता है, यूनियन ऑल्स में इट कीप्स ऑल द रिकॉर्ड्स। सर ये वैभव सरांनी नेक्स्ट डेटा आणि प्रीवियस डेटा म्हणून सांगितले आम्हाला। व्हाटएवर, कंसेप्ट तो यही है ना, यूनियंस में आपके डुप्लीकेट्स रिमूव होते हैं एंड यूनियन ऑल्स में आपके डुप्लीकेट्स वैसे की वैसे रहते हैं, राइट। तो पावर बीआई में जो अपेंडिंग हो रहा है, दिस इज नथिंग बट दिस यूनियन ऑल। कभी कभी ऐसा क्रॉस क्वेश्चनिंग भी करते हैं कि पावर, इफ यू कंपेयर सीक्वल विथ पावर बीआई अपेंड ऑपरेशंस, which operation it is union or union all? So it is union all। हम बस रिकॉर्ड्स को एक दूसरे के नीचे स्टैक करते हैं, हम डुप्लीकेट्स रिमूव नहीं करते। अंडरस्टैंड है? समझ में आया? ओके सर। पावर बीआई डेस्कटॉप में जो अपेंड ऑपरेशंस हम कर रहे हैं, दिस इज नथिंग बट अ यूनियन ऑल। ठीक है। तो मुझे अभी एक बात बताओ, मैं थोड़ा सीक्वल रिलेटेड भी पूछ रहा आपको, तो मुझे एक बात बताओ, जब अपन दो टेबल्स को यूनियन करते हैं तो उसकी प्री रिक्विजिट्स क्या होती है? किस दो टेबल्स को हम यूनियन कर सकते हैं? कॉलम सेम पाहिजे। कॉलम सेम मतलब नंबर ऑफ कॉलम सेम चाहिए, राइट। युनिक आपण बघू शकतो तर युनिक आयडी कोणता आहे त्यांचा? नहीं, क्या नहीं समझा, नहीं क्या बोल रहे हो? कॉलम सेम पाहिजे, त्याचे युनिक आयडी मतलब ते म्हणजे 1 2 3 घेतोय असं। वैल्यूज यूनिक चाहिए सर। यस। वैल्यूज यूनिक चाहिए? नहीं, ऐसे कोई प्री रिक्विजिट्स नहीं है, वैल्यूज के रिगार्डिंग कोई रिक्विजिट्स नहीं है। प्री रिक्विजिट्स है कि आपके पास नंबर ऑफ कॉलम्स सेम होने चाहिए, कॉलम्स का डेटा टाइप सेम होना चाहिए, कॉलम्स के नाम सेम होने चाहिए। ये जब आप यूनियन ऑपरेशंस करते हो तो ये 3 प्री रिक्विजिट्स होती है। ये आपको सीक्वल के इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि व्हाट आर द प्री रिक्विजिट्स व्हेन यू डू अ यूनियन, डू अ जॉइंट्स बिटवीन टू टेबल्स। सॉरी, जब आप यूनियन करते हो दो टेबल्स के बीच में, तो प्री रिक्विजिट्स क्या है कि नंबर ऑफ कॉलम्स, सीक्वल की बात कर रहा हूं मैं, टॉकिंग अबाउट सीक्वल। सीक्वल में क्या होता है कि कॉलम्स के नाम सेम चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम्स सेम चाहिए एंड कॉलम्स का डेटा टाइप सेम चाहिए, तभी आप दो टेबल्स को यूनियन कर सकते हो। आप लेट से इस टेबल का जो नाम है, इस नाम को थोड़ा चेंज कर दो एंड यूनियन करने का ट्राई करो, वो यूनियन आपको एरर शूट करेगा सीक्वल में, वो यूनियन अब वो करेगा ही नहीं यूनियन। या एक टेबल में लेट से 2 कॉलम रखो, एक टेबल में एक ही कॉलम रखो एंड ट्राई टू यूनियन इट, वो नहीं करेगा यूनियन। तो सीक्वल इस मामले में स्ट्रिक्ट है, वो यूनियन को अलाउ ही नहीं करेगा या यूनियन ऑल को अलाउ नहीं करेगा जब तक उसकी प्रीरिक्विजिट्स फुलफिल नहीं होती। लेकिन पावर बीआई में वैसा नहीं है। इफ द कॉलम्स आर डिफरेंट, कॉलम्स नेम आर डिफरेंट, स्टिल द अपेंड ऑपरेशंस परफॉर्म बट द रिजल्ट्स माइट बी चेंज। दैट्स व्हाई मैंने ये सिनेरियो तुम लोगों को बोला है कि चेक करो कि हाउ दिस आउटपुट इज कमिंग। ठीक है, कल मुझे बताना ये ट्राई करके कि क्या ट्राई किया और क्या क्या आउटपुट आया। ओके सर।
ओके, ठीक है। और आपके सीक्वल के नॉलेज को थोड़ा ब्रश अप करो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम लोग प्रैक्टिस नहीं करते क्या सीक्वल की? भूल जाओगे हाँ? नहीं तो क्या होगा कि प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो 10-15 दिन में सब सीक्वल जीरो हो जाएगा, कुछ याद नहीं रहेगा कमांड्स। डेली उसको शेड्यूल बनाओ, डेली प्रैक्टिस करो, एटलीस्ट 1-2 घंटा निकालो उसके लिए, और थोड़ा डे टू डे डेली प्रैक्टिस करो सीक्वल के ऊपर। सीक्वल एक ऐसा सब्जेक्ट है, जब अंडरस्टैंड हो जाएगा तो सारी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी, लेकिन जब भूल जाओगे तो पर वापस से स्टार्ट करना पड़ेगा स्क्रैच से। डेली प्रैक्टिस करो इसकी। क्वेश्चनिंग ऑनलाइन बहुत मिलते हैं सीक्वल के बेसिस पे, क्वेश्चंस लो और थोड़ा लॉजिकल थिंकिंग बढ़ा के, जब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे ऑनलाइन तब तक वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा आपको कि सीक्वल की क्यूरीज आप सॉल्व कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस करो और बताओ ये ट्राई करके कि क्या आउटपुट मिल रहा है तुम लोग पावर BI में। ये शीट्स एक्सरसाइज समझ में आया ना सब लोगों को, क्या करना है? हेलो, एक मिनट ना, मैं जस्ट अटेंडेंस कैप्चर कर रहा हूँ, जस्ट अ मिनट। हाँ सुप्रिया बोलो। सर युनियन आणि जॉईन सेमच राहतं का? नहीं, यूनियन इज रो ऑपरेशंस, जॉइन इज आर द कॉलम ऑपरेशंस। ओके सर. म्हणजे जॉईन मध्ये आपण आयडी नुसार डेटा जर आयडी सेम असेल जसं की फॉरेन की आणि प्रायमरी की, जर आपण एका टेबलची फॉरेन की वरून आपल्याला प्रायमरी कीचा डेटा काढायचा आहे तर आपण जॉईन यूज करतो. पण युनियन मध्ये आपण डायरेक्टली रोज फेच करतो का पूर्ण? सी, अभी एग्जांपल में बोलता हूँ कि लेट्स से मेरे पास एक टेबल है, लेट्स से दिस टेबल, अभी मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूँ तुम लोग का, ठीक है, चलेगा ना? No problem, Yes, sir. sir. ओके, लेट्स से मेरे पास एक टेबल है आईडी एंड सब्जेक्ट का, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास 1 है, 2 है एंड 3 है। सेम लेट्स से आई सब्जेक्ट का नाम है मैथ, लेट्स से फिजिक्स, मैं PHY डाल रहा हूँ बस, और साइंस SCI लिख रहा हूँ। मेरे पास 3 सब्जेक्ट है, ये मेरा T1 है, जैसे टेबल 1 है, एंड दिस इज माई टेबल 2 विच ऑल्सो कंटेन द कॉलम ID, एंड यहाँ पे मेरे पास मार्क्स है, राइट। तो टेबल लेट्स से 1, 2 एंड 3 है, और उनके कुछ मार्क्स है, लेट्स से 10 है, 20 है एंड 30, ठीक है। नाउ अगर मैंने आपको बोला कि टेल मी मैथ सब्जेक्ट के मार्क्स कितने हैं, तो दिस टाइम आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों टेबल्स को रेफर करना पड़ेगा। आपको एक ज्वाइन कंडीशन लिखनी पड़ेगी कि लेट्स से सेलेक्ट स्टार फ्रॉम T1 और इनर ज्वाइन T2 ऑन T1.id इक्वल टू T2.id, करेक्ट। एंड आउटपुट में आपको क्या चाहिए होगा, लेट्स से फर्स्ट टेबल से मुझे आईडी या सब्जेक्ट चाहिए, एंड सेकंड टेबल से मुझे चाहिए मार्क्स। सो यहाँ पे जो जॉइंस होता है, जॉइंस कॉलम के बेसिस पे होता है। मैंने यहाँ पे एक जॉइन कंडीशन दी कि मेरे पास एक कॉमन कॉलम है 2 टेबल्स के बीच में, और उस कॉमन कॉलम को यूज करके मैं यहाँ पे चूज कर सकता हूँ कि मुझे फर्स्ट टेबल में से कितने कॉलम्स चाहिए एंड सेकंड टेबल में से कितने कॉलम्स चाहिए। बट जॉइंस आर इज नथिंग बट अ कॉलम ऑपरेशंस, बट अपेंड और यूनियन इज नथिंग बट अ रो ऑपरेशंस। उसमें क्या होता है कि आप एक दूसरे के ऊपर स्टैकिंग कर रहे हो ना, तो रो बढ़ेंगे, कॉलम्स उतने ही रहेंगे, कॉलम्स नहीं बढ़ने वाले, बस रो बढ़ेंगे। सो जॉइंस इज नथिंग बट अ कॉलम ऑपरेशंस, यूनियन इज नथिंग बट अ रो ऑपरेशंस। समझे? Yes, sir. यही डाउट था ना कि एक्चुअली जॉइंट्स में क्या होता है, यूनियंस में क्या होता है, राइट? ऐसे अभी किसी ने पूछा था, राइट? अभी हाँ यस.
So joins is a column operations and union is a row operations. ओके सर। Okay, ठीक है, चलो मिलते हैं अपन। Sir, I have one doubt. बोलो।